اور اپنی پریئر کے لیے مسار سے کچھ کرنے کے آئے اور اپنی پریئر کر رہے ہیں. باپ اس کے نام سے آمین. باپ کو شروع کرتے ہیں. ایسا موقع دیے موقع میں حاضر ہیں باپ. اس وقت کے لیے ہم دیکھتے ہیں گرہن شدہ کرتے ہیں باپ. جتنے بھی لوگ پریئر میٹنگ میں آئے ان کو شدہ کرتے ہیں. جو لوگ ابھی نہیں حاضر ہے باپ جلد سے پریئر میٹنگ میں حاضر ہو سکے سب کھاتے. جتنے بھی لوگ عید گاہ کے گلوں کا کھاتے ہم دیتے ہیں. جو بھی ہم پاک کلام سے پڑھے ہمارے لیے باس برکت ہو باپ. امید چھوٹے نے قبول کیجیے مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. اب ہم سسٹر دیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آگے ورشپ کریں. Praise the Lord, hallelujah. یہ میرا پریئر پتر ہے جسے میں پسند ہوں اس کی سنو. Praise the Lord. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. تائیوں تے جان میری تائیوں تے جان میری سن رب دی گوندی اے. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. سچے پھلاں دا گلدستہ مہکاں ونڈی جاوے. کل کے دور ہنیرے میری زندگی نوں روشناوے. سچے پھلاں دا گلدستہ مہکاں ونڈی جاوے. کل کے دور ہنیرے میری زندگی نوں روشناوے. صبح تے شاماں نوں میری پیاس بجھاندی اے. صبح تے شاماں نوں میری پیاس بجھاندی اے. تائیوں تے جان میری تائیوں تے جان میری سنا رب دی گوندی اے. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. اس بائبل دیاں مٹھیاں آیتاں لکھیاں دل تے میرے. اکھیاں والے پڑھی لیندے ہو جاندے جو نیڑے. پیار دشمناں نوں سانوں آپ سکھاندی اے. کرو پیار دشمناں نوں سانوں آپ سکھاندی اے. تائیوں تے جان میری تائیوں تے جان میری سنا رب دی گوندی اے. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. زندگی دی روٹی نال اے زندگی دا پانی. قدرت دا انمول خزانہ سورگی امرت بانی. اے زندگی دی روٹی نال اے زندگی دا پانی. قدرت دا انمول خزانہ سورگی امرت بانی. رکھوال جی جی آکھے میری پیاس بجھاندی اے. رکھوال جی جی آکھے میری پیاس بجھاندی اے. تائیوں تے جان میری تائیوں تے جان میری سنا رب دی گوندی اے. بائبل چ محبتاں دی مینوں خوشبو آندی اے. Praise the Lord, hallelujah. دائے مسیح میں انگور دا بوٹا. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. تسی ہو میریاں ٹانیاں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. یا ٹانیاں پھل نہ دیندیاں جیڑیاں ٹانیاں
پھل نہ دیں دیاں سر کے سوار ہو جانیاں کہندائے مسیح میں انگور دا بوٹا کہندائے مسیح میں انگور دا بوٹا تجھدا چر بوٹے نال ٹانی لگی رہندی اے جنہ چر بوٹے نال ٹانی لگی رہندی اے پھل تے پھولاں دے نال او تے سجی رہندی اے پھولاں دے نال او تے سجی رہندی اے رکھدا خیال دے باغ دا مالک رکھدا خیال او دے باغ دا مالک کرتا ہے رکھبانیاں کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا تسی ہو میریاں ٹانیاں کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا بندیا کماں تو بشانیا تو جاندا اے بندیا کماں تو بشانیا تو جاندا اے من وچ بھڑیا جو لبا تے لے آندا اے من وچ بھڑیا جو لبا تے لے آندا اے بول تیرے تصویر ہے تیری بول تیرے تصویر ہے تیری سمجھ کے بولی وانیاں کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا تسی ہو میریاں ٹانیاں کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا مسیح دی کٹانی جے تو سوچ لے تو وی اے مسیح دی کٹانی جے تو سوچ لے جسو جے بانی دے نال زندگی نو بوچ لے یسو دی بانی دے نال زندگی نو بوچ لے وہ دے بنا کوئی مٹا نہیں سکتا او دے بنا کوئی مٹا نہیں سکتا تیریاں سب پریشانیاں کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا سیم میریاں ٹانیاں کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا پریز دی لارڈ ہیلیلویا یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا خدا بڑا ہے آتی ہیں آندیاں تو کر ان کا خیر مقدم آتی ہیں آندیاں تو کر ان کا خیر مقدم دلگم طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے چنا ہے لائے مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا خدا بڑا ہے
अग्नि में तप के सोना है और भी निखरना, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरना, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी, एक दिन होगा विशाल तरबर जो बीत जो पड़ा है, हिम्मत को खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा praise the Lord, hallelujah, thank you. Praise the Lord, God bless you. अब हमें गीत गाएंगे. Praise the Lord. दुनिया में कोई नहीं जिसको खुदा प्यार नहीं करता, अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप हमें करता, प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप हमें करता, एक लंगड़ा था, यीशु के नाम से वो चलने लगा था, के गेट पर एक लंगड़ा था, यीशु के नाम से वो चलने लगा था, यीशु के नाम से वो चलने लगा था, दुनिया में कोई नहीं जिसको खुदा प्यार नहीं करता, अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप में करता, जिन्नत को लोगों ने सजा किया था, जिला जिला कर वो कहने लगा, जिन्नत को लोगों ने सजा किया था, जिला जिला कर वो कहने लगा, ए यीशु इनको तुम माफ कर, ये गुनाह ना इनके दिल में लगा, ये गुनाह ना इनके दिल में लगा, दुनिया में कोई नहीं जिसे खुदा प्यार नहीं करता, प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप ने करता, अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप में करता, के गेट पे एक लंगड़ा था, यीशु के नाम से वो चलने लगा, के गेट पर एक लंगड़ा था, यीशु के नाम से वो चलने लगा, चलते उछलते और गाते हुए हमसे खुदा की बात करने लगा, दुनिया में कोई नहीं जिसे खुदा प्यार नहीं करता, दुनिया में कोई नहीं जिसे खुदा प्यार नहीं करता, अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप में करता, प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप में करता. अब हम सिस्टर उजाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे वर्शिप में लीड करें. आई थिंक अभी नहीं है.
اب ہم سسٹر انایا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے گیت پریپیئر کی ماسٹر شیئر کریں. سسٹر انایا. اب ہم سسٹر روت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اگر گیت پریپیئر کی ماسٹر شیئر کریں. Say praise Lord. Lord, Gaffer. to me, Lord, Okay. Joy in my Lord, joy, 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 joy in my heart. Jesus love me. Okay. Joy in Okay, Joy in heart. Jesus love me. Joy in my heart. Joy in my heart. Jesus love me. Hallelujah. faith in my Joy in my heart. Joy, joy, joy. Joy in my heart. Jesus love me. Joy in my Joy. heart. Joy in my heart. Jesus love me. Peace in my heart. Peace in my heart. Peace, peace, peace. Peace in my heart. Jesus love me. I have peace in my heart. Peace in my heart. Jesus love me. Hallelujah. Jesus love me. Pero on the right way, Jesus. Jesus love me. Got it. Walk, Jesus. Okay, got it. Walk to me, Nagoro. Walking Walking with with Jesus. Jesus. Walking every day. Walking every night. Walking with Jesus. Jesus. Walking with Jesus today. Walking in the sunlight. That is with Jesus. Daddy every day. Dancing every night. Night. Tuni Okay. night to the Jesus today. That is Praying with Jesus. my Praying. Jesus is I know for a Bible. Tell me to it. Him Tell me belong. Lord. We are weak, but He's a dog. Yes. Jesus love me. Yes, Jesus love me. On the Mumai Gavichov. Okay, praise the Lord, guys. Pero Praise the Lord. to me Hallelujah. اور روت گاؤنگی. Jadalud, tumena kalma. Okay. Jadaludi, 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 Jade, Jadaludi, Jadaludi, Jade, Ajakare, Azad, Kundine. Jadaludi, 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 Jadaludi. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. ایک سامل ایک اور بنا چاہتا ہے. Praise the Oh Lord. my, to me, But mighty God we serve. But mighty God we serve. بول پھر. When I adore him, when I be God we serve. When mighty, when mighty, when mighty, when we serve. When mighty, when
Mighty God, God we serve. Praise the Lord. Hallelujah. Mighty God we serve. Mighty God we serve. Angels and falling, us adore him. One mighty God we serve. Mighty God we serve. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. कोई और गीत गाना चाहेगा? Okay. अब हम सारा से रिक्वेस्ट करने के आया और आगे स्टोरी रीडिंग करें. Praise the Lord. आज की जो हमारी स्टोरी है वो दाश की किताब उसके 8 बाब में से ली गई है, कश्ती में से बाहर निकलने के बारे में. जमीन के नीचे से पानी आना बंद हो गया और आसमान से बारिश रुक गई. 150 दिन तक पानी उतरता रहा. आखिरकार कश्ती अरारात के पहाड़ पर ठहर गई. पानी नीचे उतरता रहा जब तक कि पहाड़ों की चोटियां दिखाई न देने लगी. 40 दिन के बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवे को बाहर भेजा, मगर वो वापस न आया. फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि पानी कम हुआ है या नहीं. लेकिन जमीन पर अभी तक पानी ही पानी था और कबूतरी को कहीं जगह न मिली. वो कश्ती में वापस आ गई. 1 हफ्ते बाद नूह ने कबूतरी को फिर भेजा. वो शाम को उसके पास वापस आई. उसकी चोंच में एक ताजा पत्ती थी. इस तरह नूह को पता चला कि पानी उतर गया है. 1 हफ्ते के बाद उसने कबूतरी को फिर भेजा. इस दफा वो लौट कर नहीं आई. अब नूह ने कश्ती की छत खोली. उसने चारों तरफ नजर डाली और देखा कि जमीन सूख रही है. आखिरकार जमीन बिल्कुल खुश्क हो गई. उस वक्त नूह 601 साल का था. खुदा ने नूह से कहा, अपने खानदान के साथ कश्ती से बाहर आ जा. अपने साथ परिंदों और जानवरों को बाहर ले आ ताकि उनकी नस्ल बढ़े और वो सारी जमीन पर बढ़ जाएं. नूह अपने खानदान के साथ कश्ती से बाहर आया. सब जानवर और परिंदे भी अपने अपने जोड़ों के साथ चले गए. नूह ने खुदा के लिए एक कुर्बानगाह बनाई. उसने पाक जानवरों और परिंदों में से थोड़े से लेकर कुर्बानी किए. खुदा खुश हुआ और उसने अपने आप से कहा, हाँ, बचपन ही से इंसान के दिल में बदी है. आइंदा मैं कभी भी सारे जानदारों को इस तरह हलाक ना करूंगा. जमीन पर हमेशा फसल उगाई और काटी जाएगी. दिन रात, सर्दी गर्मी और मुख्तलिफ मौसम हमेशा रहेंगे. खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, मैं अब तेरे और तेरे बेटों के साथ अहद बांध रहा हूँ. ये अहद उन के लिए भी होगा जो तेरे बाद होंगे. ये अहद उन सब जानवरों और परिंदों के लिए भी होगा जो कश्ती से तेरे साथ बाहर आए. मैं वादा करता हूँ कि अब मैं जमीन पर कभी सैलाब ना लाऊंगा. मैं अपनी कमान बादलों में रखता हूँ, वो मेरे अहद का निशान होगी. ये तेरे और सब जानदारों के लिए होगा. जब कभी ये कमान आसमान में दिखाई देगी, मैं अपना अहद याद करूंगा. आइंदा मैं कभी भी जमीन पर से सारे जानदारों को हलाक नहीं करूंगा. आमीन. आमीन. गॉड ब्लेस यू. सिस्टर श्रेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे मैसेज सुनाएं. सिस्टर श्रेन. हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू समर सरा. और किसी बच्चे ने अगर गीत गाना है हाँ जी, या प्रेयर उजाला या का वर्स, जी ठीक है जी. और अगर नाया या अरुण भी हैं तो गीत गा सकते हैं. जी सरफिन, आप उजाला शुरू करेंगे.
ہاں جی کرنے لگے. ٹھیک. آپے اوپروں ہاتھ بڑھا کے مینو رب بچاوے گا. میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپے اوپروں ہاتھ بڑھا کے مینو رب بچاوے گا. میرے بھاری دھوتی دشمن جنہ ویر ودایا ہے اونا کھولو میرے رب نے مینو آپ چھڑایا سی. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپے اوپروں حد ودا کے مینو رب بچاوے گا. میرا کیتا سامنا ہونا جدو سامنے پپتانا. پر خداوند میرا رب سی میرا چھڑانے والا. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپے اوپروں ہاتھ بڑھا کے مینو رب بچاوے گا. مینو کھلے تھان دے اُتے آپے کر لے آیا سی. مہربان ہے میرے اُتے مینو آپ چھڑایا سی. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپے اوپروں ہاتھ بڑھا کے مینو رب بچاوے گا. آمین آمین. آتے ہیں بندگی میں یسوع سے ملنے کو. آتے ہیں بندگی میں یسوع سے ملنے کو. جلدی جلدی آئے اپنا سر جھکائے. ادب سے جلدی جلدی آئے اپنا سر جھکائے. ادب سے بیٹھیں گے یسوع سے ملنے کو. ادب سے بیٹھیں گے یسوع سے ملنے کو. آمین. تعریف خدا کے بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی. عزت و جلال قدرت و کمال عزت و جلال قدرت و کمال. ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی تعریف و خدا کے بڑے کی تعریف و خدا کے بڑے کی. فرشتے صبح شام لیتے اس کا نام فرشتے صبح شام لیتے اس کا نام. کرتے ہیں عبادت بڑے کی کرتے ہیں عبادت بڑے کی تعریف و خدا کے بڑے کی تعریف و خدا کے بڑے کی. فرشتے شو سدا تیری ہے خدا فرشتے شو سدا تیری ہے خدا. سنا ہو بڑے کی سنا ہو بڑے کی تعریف و خدا کے بڑے کی تعریف و خدا کے بڑے کی. یسوع سر بلند ہوا فتح مند یسوع سر بلند ہوا فتح مند. فتح ہی فتح ہو بڑے کی
तारीफ पता हो बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की यीशु है अजीम उसकी हो ताजीम यीशु है अजीम उसकी हो ताजीम सारे गाँव सना बड़े की सारे गाँव सना बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की यीशु खुदावन सुनता है दुआ खुदावन देता है जवाब खुदावन सुनता है दुआ खुदावन देता है जवाब खुदावन रहता है हर दम अपने ही लोगों के साथ खुदावन रहता है हर दम अपने ही लोगों के साथ यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं कुछ पूछते नहीं अगर तुम मेरे बाप से अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ खुदावन देता है जवाब कोई मांगोगे दुआ खुदावन देता है जवाब एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो बड़े जोर से उसने बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ बरसों बादल ना बरसा एक मांगी थी दुआ बरसों बादल ना बरसा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो फिर बड़े जोर से उसने बड़े होश से उसने एक मांगी जो दुआ छमछम बादल था बरसा एक मांगी जो दुआ छमछम बादल था बरसा खुदावन सुनता है दुआ खुदावन देता है जवाब खुदावन रहता है हर दम अपने ही लोगों के साथ खुदावन सुनता है दुआ खुदावन देता है जवाब खुदावन रहता है हर दम अपने ही लोगों के साथ आमीन आमीन सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है हाँ हालेलुया 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 मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है हालेलुया 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 मेरी तो रूह यीशु तेरे लिए है यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा मेरी कुव्वत का सर चश्मा तो है जिंदा खुदा सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है सारी शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है बादशाहों का यीशु तू बादशाह सारी कौमें मानेंगी तुझको
मुकद्दर खुदा, बादशाह यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। आमीन आमीन। अब रोशनी साहब। एक मुसाफिर यरूशलेम से यरीहो को गया, रास्ते में डाकुओं के वो गिर गया। एक मुसाफिर यरूशलेम से यरीहो को गया, रास्ते में डाकुओं के वो गिर गया। कूटा सब कुछ लूटा, अधमुआ सा छोड़ गए, मारा कूटा सब कुछ लूटा, अधमुआ सा छोड़ गए। एक मुसाफिर यरूशलेम से यरीहो को गया, रास्ते में डाकुओं के वो गिर गया। आमीन आमीन। पूरा नहीं था। बच्चों तारों की मानिद, नहीं बस अच्छा चलो सुनाओ। बच्चों तारों की मानिद तुम चमको, बच्चों तारों की मानिद तुम चमको, बच्चों तारों की मानिद तुम चमको, बच्चों तारों की मानिद तुम चमको। दुआ करो ए प्यारे बच्चों, ताकि उसके नूर बनो। दुआ करो ए प्यारे बच्चों, ताकि उसके नूर बनो। बच्चों तारों की मानिद तुम चमको, बच्चों तारों की मानिद तुम चमको। कलाम पढ़ो ए प्यारे बच्चों, ताकि उसके नूर बनो। कलाम पढ़ो ए प्यारे बच्चों, ताकि उसके नूर बनो। बच्चों तारों की मानिद तुम चमको, बच्चों तारों की मानिद तुम चमको, बच्चों तारों की मानिद तुम चमको। आमीन। खुदा का खौफ फिल्म का शुरू है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको सलाम। God will protect you. आमीन जी, प्रेज गॉड। खुदा बरकत दे जाला, नियर और रोशनी। और सबा अगर अरुण गाना चाहता है तो अनाया या अरुण। ओके चलें, ठीक है। हम बच्चों के लिए प्रेयर करेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे कि खुदावन ने आज फिर से बच्चों को इकट्ठा किया, फजल किया, रहम किया, तरस खाया कि फिर से आज हमारे बच्चों ने खुदावन की प्रस्तिश की है। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। हम सब मिलकर अपने बच्चों को जो खुदावन ने हमें दिए हैं, इस ग्रुप में हैं, हमारी फैमिलियों में हैं, खुदावंद हम अपने सारे बच्चों को खुदावंद यीशु तेरे हाथों में दे देते हैं, खुदावंद तेरे हवाले कर देते हैं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि बच्चे खुदावंद तेरी मलकियत है, खुदावंद वो तूने हमें परवरिश के लिए दिए हैं। इसलिए खुदावंद हम हन्ना की तरह तुझे ही लौटा देते हैं। ये बच्चे खुदावंद तेरे हाथों में दे देते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही इनकी हिफाजत कर सकता है, तू ही इनको संभाल सकता है, खुदावंद तू ही इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। खुदावंद हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा ऐसा बाप है जो खुदावंद हिफाजत करने की और खुदावंद इनको सिखाने की, समझाने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। खुदावंद हम इन बच्चों को खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं, एक एक को खुदावंद यीशु खुदावंद तेरे होल्ड में दे देते हैं, तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। खुदावंद तू
जहाँ जहाँ तेरे बच्चे जाएं खुदावंद तू इनके साथ रहना, खुदावंद इनकी रहनुमाई करना, खुदावंद इनके आगे आगे हो के चलना, खुदावंद यीशु ये तुझ में बढ़ते जाएं, तुझ में व्यस्त होते जाएं। और खुदावंद जिस तरह तूने सैमुअल को बचपन से ही चुन लिया था और खुदावंद तेरा बंदा बड़ा हो के खुदावंद खुदा तेरी खिदमत करता रहा और खुदावंद तुझ से जुड़ा रहा, खुदावंद उसी तौर से ये मसा जो सैमुअल नबी पे ठहरा हुआ था, खुदावंद वही अपने सारे बच्चों के लिए मांगती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद एक एक को खुदावंद तू सैमुअल नबी की तरह इस्तेमाल करना, एक काहिन की तरह, नबी की तरह, खुदावंद इनके ऊपर तेरा मसा ठहरा रहे यीशु के नाम से। इनकी स्टडी में मदद करना, खुदावंद ऊंचे ऊंचे ओहदों पे लेके जाना, खुदावंद खुदा जो ये कारोबार करें, जॉब्स करें, खुदावंद खुदा ये दुम नहीं बल्कि सर ठहरे, खुदावंद जहां भी जाएं खुदावंद यीशु तेरी हजूरी, तेरा मसा इनके ऊपर ठहरा रहे, खुदावंद ये कामयाब करना, खुदावंद खुदा फतेहमंद बनाना, खुदावंद दुश्मन की फौजों के ऊपर हमेशा ये फतह पाते रहे, उसको पांव तले रौंदते रहे, कभी भी किसी ऐसी बुरी लत में न पड़े, खुदावंद किसी हरामकारी में, जनाकारी में, खुदावंद किसी नशे में, खुदावंद ऐसे बुरे लोगों से खुदावंद तू हमेशा अपने बच्चों को बचा के रखना, खुदावंद खुदावंद जी जब तेरे बच्चे बाहर स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, खुदावंद तू इनको खुदावंद खुदा बुरी आंखों से, बुरी नजरों से, खुदावंद खुदा बुरे लोगों से, खुदावंद शैतान के हमलों से, खुदावंद तू अपने बच्चे को बचा के रखना, खुदावंद और खुदावंद अपने बच्चों की हिफाजत निगहबानी करते रहना, खुदावंद अपनी मानिद बना ले यीशु जी। खुदावंद पाक रूह हम तेरे कंट्रोल में दे देते हैं बच्चों को, खुदावंद ताकि खुदावंद जो हमारे खुदा को, हमारे यीशु को, हमारे बादशाह को पसंद है वो इनके अंदर वो मिजाज आ जाए, खुदावंद खुदा वो खुदावंद का डर और खौफ आ जाए, खुदावंद खुदा खुदावंद की हिकमत, दानिश, फहम, अकल, समझ खुदावंद इनके अंदर आ जाए, खुदावंद ताकि हर ये फैसला, हर ये काम खुदावंद तेरी हिकमत से कर सकें, खुदावंद यीशु के नाम से, खुदावंद और कभी भी इनकी जिंदगी फेलियर ना हो खुदावंद बल्कि कामयाब हो, खुदावंद बुलंदियों पे लेके जाना, सरफराज करना, खुदावंद खुदा इनकी हाथों की कमाई में बरकत डाल देना, खुदा कभी किसी चीज की कमी ना आने देना, रूहानी और जिस्मानी बरकतों से खुदावंद इनको भरते रहना, खुदावंद ये अपनी फैमिली के लिए खुदावंद खुदा जहाँ स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं तो खुदावंद इनके जो गिर्द खुदावंद खुदा ऐसे लोगों को मुकर्रर कर देना, खुदावंद इनको उनके लिए बाइस से बरकत बनाना, जिस तरह खुदावंद तूने मूसा को खुदावंद यशवा दिया, खुदावंद दाऊद को यूनतन दिया, खुदावंद पालूस रसूल को तमोथियस दिया, खुदावंद उसी तौर से खुदावंद इनकी जिंदगी के जो गिर्द, इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मुकर्रर कर देना, खुदावंद यीशु के नाम से। जिस तरह अस्कर मलका के तैयारी के लिए खुदावंद तूने 7 सहेलियां खुदावंद उसके चौगिर्द रखी, खुदावंद उसी तौर से इनके दोस्त, इनके टीचर्स खुदावंद ऐसे इनके चौगिर्द मुकर्रर कर दे जो खुदावंद तुझ में इनको बढ़ाएं, खुदावंद खुदा और खुदावंद तुझ में ये खुदावंद व्यवस्थ होते जाएं ताकि बहुत सा फल इनकी जिंदगियों में आए, खुदावंद पाकरू की नेमते, पाकरू के फल इनकी जिंदगी में काम करें यस्सु के नाम से। खुदावंद इस ग्रुप के लिए भी ये बाइस से बरकत बनते रहें और खुदावंद हमेशा अपने बदनों से, अपने आवाजों से, गलों से, खुदावंद हाथों से, पाँव से, जिस्म के एक असा से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें, खुदावंद कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे कपड़े, कोई ऐसे जो तुझे चीजें पसंद नहीं वो इस्तेमाल ना करें ताकि खुदा दुश्मन को कहीं से भी इनकी जिंदगी में आने के लिए कोई रास्ता न मिले। खुदा इनके फोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप सब कुछ खुदा यीशु में तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे निगाहबान, तेरे पाक फरिश्ते इनके चौगिर्द मुकर्रर कर देती हूँ यस्सु के नाम से। किसी ऐसी ये वेबसाइट ना खोलें खुदा, कुछ ना ऐसा देखें ना सुने खुदा जिससे खुदा इब्लीस को मौका मिले कि वो इनकी जिंदगियों में आ जाए। खुदा यस्सु के नाम से उन सारे खिड़कियों को, दरवाजों को यस्सु तेरे नाम से बंद कर देती हूँ खुदा और खुदा तेरी रहमतों के, बरकतों के दरवाजे खुलते रहें और खुदावंद ये हमेशा अपने
गाने से बजाने से खुदा इनके हाथों को मसा कर ये म्यूजिक बजाने वाले हों खुदा गीत गाने वाले हों खुदा बाइबल रीडिंग करने वाले हों खुदा अपने चर्च में बड़े अपनी कुदरत से अपने नाम अपने जलाल के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर और इस ग्रुप में भी इस्तेमाल कर खुदा ये अपनी फैमिली के लिए फख्र का बाइस बने खुदा अपने चर्चेस के लिए खुदा और इस ग्रुप के लिए खुदा हमेशा खुदा फख्र का बाइस बनते रहें यस्सु के नाम से अपने माँ बाप के लिए खुदा और खुदावंद हमेशा तेरी और अपने माँ बाप की टीचर्स की फर्मा बरदारी में चलें खुदावंद यस्सु के नाम से कभी भी खुदावंद नाफरमानी ना करें ताबियादारी की रूह मांगती हूँ यस्सु मसीह तेरी रूह इनके अंदर आ जाए जिस तरह खुदावंद यस्सु मसीह तू अपने बाप का फर्मा बरदार ताबियादार बेटा है खुदा उसी तौर से इन बच्चों के ऊपर भी वही रूह उंडेल दे खुदा यस्सु के नाम से खुदा ये हमेशा खुदा तेरे डर और खौफ में जिंदगियां गुजारें खुदा हमेशा अपने फैसले खुदा तेरी रहनुमाई से करते रहें यस्सु के नाम से खुदा इनके माँ बाप को भी अक्ल दे दानिश दे फहम दे ताकि खुदा इनकी परवरिश खुदा तेरे डर और खौफ में रहते हुए करें खुदा हमेशा खुदावंद इनकी जिंदगी से इनके माँ बाप की जिंदगी से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे यस्सु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे और ग्रुप के सारे मेंबर के लिए हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावंद मैं पूरे ग्रुप को हम सब मिलकर एक रूम में बंद कर अपने घरों को अपने घरों की चीजों को खुदावंद एक एक को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा बुनियादों से लेके छतों तक एक एक चीज को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देती हूँ घरों की जगह तेरे आछी रथों का पहरा लगा देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा हमारे घरों की हिफाजत कर हमारी जॉब्स की कारोबार की खुदा रुपए पैसे की खुदा तू हिफाजत कर यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा और खुदावंद इस जब तेरे हम बदन को लेते हैं तेरे लहू को लेते हैं तो खुदावंद हमारे अंदर से वो लानती बीमारियां वो जो हमारे खिलाफ लिखा गया पढ़ा गया कोई जादू टोना किया कोई तवीज धागा किया है खुदा यस्सु के नाम से उन सब को कैंसिल कर देती हूँ खुदा जब हम इसको लें तो खुदावंद हमारे अंदर से सारी नापाकी गंदगी खुदा यस्सु के नाम से पाक और साफ हो जाए सारा असर अबलीसी कुव्वतों का उसकी बीमारियां को यस्सु के नाम से खत्म हो जाए और आज जब खुदावंद हम तेरे हजूरी से उठे तो हम पाक और साफ हुए हों खुदावंद हमारे बदनों में रूह बदन जान में कोई दाग कोई धब्बा कोई झुरी न रहे यस्सु के नाम से हम नए बन जाए खुदा और खुदावंद तेरी पाक और पवित्र मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो खुदा जहां जहां हम जाएं खुदावंद लोग जब हमें देखें तो खुदावंद वो हमें ना देखें वो तुझे देखें खुदावंद हम जहां जहां जाएं खुदावंद तेरा रोब तेरा दबदबा उस जगह पे ठहरता जाए खुदावंद यस्सु के नाम से खुदावंद हमारी हिफाजत करता रहे खुदावंद हमारे घरों की हमारी चीजों की खुदावंद हम तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंद कभी भी किसी चीज की कमी ना आने देना खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हूँ ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए जहाँ कहीं भी कोई भी किसी ऐसी मुश्किल में है परेशानी में है खुदावंद उनकी मुश्किलों को परेशानियों को दूर कर खुदावंद यस्सु के नाम से और खास तौर पे जितने बीमार हैं जितने डिप्रेशन में हैं खुदा उन सबको खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा यस्सु के नाम से खुदा खास तौर पे खुदा सैमुअल को और माया को खुदा सिस्टर रमनदीप को खुदाम सबा को खुदाम और सिस्टर सरबजीत को खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपाती हैं जो भी उनकी जिंदगी में इस तरह रूहानी या जिस्मानी शिफा की जरूरत है खुदाम यस्सु के नाम से खुदा कहीं रिश्तों में कोई दरार आ गई है खुदा कहीं हमारे बदनों में कुछ बीमारी आ गई है खुदाम आज मुकम्मल तौर पे शिफा दे देना खुदाम अपने दहने कुदरत वाले शिफा वाले हाथ को बढ़ा खुदाम एक एक को खुदा तो मुकम्मल तौर पे शिफा बख्श दे खुदा कहीं डिप्रेशन में है खुदा खास तौर पे सिस्टर सरबजीत को
उसकी फैमिली को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती है। मुकम्मल तौर पे अपनी बेटी को आजाद कर दे खुदा, डिप्रेशन की रूह को, खुदा उदासी की, तन्हाई की, खुदा लड़ाई झगड़े की, गुस्से की, नाराजगी की, कहीं वो ना माफ करने की जो स्पिरिट है, खुदा यस्सु के नाम से तेरी बेटी की जिंदगी के अंदर से, उसके घर के अंदर से, यस्सु के नाम से हम सब मिलकर उसको बांधते हैं, उन स्ट्रॉन्ग मैन को, और अथाह गढ़े में बंद कर देते हैं, यस्सु के नाम से सील कर देते हैं। कभी वापस ना आए तेरी बेटी खुदा तुझ में तसल्ली को, इत्मीनान को, खुशी को, आज़ादी को, बहाली को रसीद करे खुदा। उस फैमिली में प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती की रूह को मांगती हूँ, शादमानी की रूह को मांगती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। अपनी बेटी को, उसकी बच्चों को, उसके हस्बैंड को आज़ाद कर यस्सु के नाम से खुदा। और खुदा दोबारा ये कभी वापस ना आए खुदा। जो भी खुदा बदी की कुव्वतें हैं जो उस फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, यस्सु के नाम से खुदा वो कभी वापस ना आए। तेरी बेटी मियाँ बीवी आपस में बच्चे जुड़ के रहें खुदा, यस्सु के नाम से खुदा। तेरा कलाम फरमाता है जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको इंसान जुदा नहीं कर सकता। यस्सु के नाम से ये कलाम तेरे बच्चों की जिंदगी में पूरा हो खुदा। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर एक रूह में बंद कर खुदा इस फैमिली को, खूबसूरत फैमिली को खुदा, शिंदे को, सरबजीत को खुदा, मन्नत को, रूही को खुदा यस्सु तेरे हाथों में दे देते हैं, बरकत देते हैं खुदा। सुलह सलामती को इस फैमिली में मांगते हैं यस्सु के नाम से खुदा। जब हम इस पानी को लें और इस रोटी को लें तो खुदा हमारी जिंदगियों से यस्सु के नाम से वो सारा जो दुख है, मुसीबतें हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं खुदा, बीमारियां हैं, तेरे यस्सु नाम से खत्म हो जाए। यस्सु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम ईमान से लें और जो भी इस वक्त आपकी परेशानी है, आप ईमान रखें कि हमारे खुदा ने वो दूर कर दी है, पाक और साफ कर दिया है। हालेलुया। और जो इस वक्त खुदा यीशु मसीह ने जितने भी हमने गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं, खुदा पाक रूह आपको जरूर याद कराएगा और आप एक एक की माफी मांगे, तौबा करें और यीशु के लहू से अपने आप को धोएं और खुदावंद आपको पाक और साफ करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम आज का जो कलाम है जो खुदावंद मेरे और आपके साथ करने को है, हम उसको खुदावंद यीशु के हाथों में दे देते हैं। खुदावंद आज जो भी कुछ तो बोलना, खुदावंद हमें आजाद करना, बहाल करना, तसल्ली देना खुदा यस्सु के नाम से। आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए खुदा, और हम ईमान में एक दर्जा और आगे बढ़े यस्सु के नाम से। आमीन। हम आज पैदाइश की किताब उसका 10 बाब जो है वो पढ़ेंगे। हमने 9 बाब जो है वो पढ़ा था और उसमें थोड़ा सीखा था, और आज हम 10 बाब पढ़ेंगे। जी जी अंजना, पैदाइश की किताब उसका 10 बाब हम पढ़ेंगे। हाँ जी। जी म्यूट हो गया है अंजना। प्रेज द लॉर्ड। 10 बाब पूरे सारे हम में पढ़, जी। हाँ जी पूरे पढ़, मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ जी पढ़ो। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪਤਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ।
ਯਾਫਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਮਰ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਅਤੇ ਮਦਾਈ ਅਤੇ ਯਾਵਾਨ ਅਰ ਤੁਬਲ ਅਤੇ ਮਸਕ ਅਤੇ ਤੀਰਾਜ਼ ਸਨ। ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਕਨਜ ਅਤੇ ਰਿਫਤ ਅਤੇ ਤੋਗਰਮਾਹ। ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸਾ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਕਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਤਾਨੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸਰਾਈਮ ਅਤੇ ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਸਨ। ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ ਅਤੇ ਹਵੀਲਾ ਅਤੇ ਸਬੇਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਹ ਸਬਤਕਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ ਤੇ ਦਦਾਨ ਸਨ। ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਮਰੋਦ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰੋਦ ਵਰਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਅਰਕ ਅਤੇ ਅਕਦ ਅਤੇ ਕਲੇਨਹ ਸ਼ਿਨਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸ਼ੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨੀਨਵਾ ਤੇ ਰੋਹੇਬੇ ਈਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨੀਨਵਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸਰਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਮੀ ਅਤੇ ਲਹਾਬੀ ਅਤੇ ਨਫੇਤੂਹੀ ਅਤੇ ਪਤਰੂਸੀ ਅਤੇ ਕੁਸਲੂਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਫਤੋਰੀ ਜੰਮੇ। ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਸਿਦੋਨ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਠਾ ਅਤੇ ਹੀਥ ਜੰਮੇ। ਨਾਲੇ ਯਬੂਸੀ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀ ਅਤੇ ਗਿਰਗਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੱਵੀ ਅਤੇ ਅਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀ ਅਤੇ ਅਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਾਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਦੋਨ ਤੋਂ ਗਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਆਮੋਰਾ ਅਤੇ ਆਦੇਮਾ ਅਤੇ ਸੋਬੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾ ਤਾਈਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਅਰਪਕਸ਼ਦ ਅਤੇ ਲੂਦ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਸਨ। ਅਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਊਸ ਅਤੇ ਹੂਲ ਅਤੇ ਗਥਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ ਸਨ। ਅਰਪਕਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਿਆ ਤੋਂ ਐਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਲਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਯਾਕਟਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਕਟਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਮੋਦਾਦ ਅਤੇ ਸਾਲਫ ਅਤੇ ਹਸਰਾਮਵਤ ਅਤੇ ਯਾਹਰਾ ਅਤੇ ਹਾਦੋਰਾਮ ਅਤੇ ਉਜਾਲ ਅਤੇ ਦਿਕੇਲਾਹ ਅਤੇ ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਅਬੀਮਾਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਓਫੇਰ ਅਤੇ ਹਵੀਲਾ ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਸਭ ਯਾਕਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫਰ ਤੀਕ, ਜੋ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। आमीन जी। ਸੌਰੀ, God ਥੋੜੇ bless। वही ਨਾਮ मैं कह ਕਾਫੀ रही हूँ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ बहुत ਸੀਗੇ। मुश्किल था, पर फिर भी आपने पढ़ लिए। God bless you। तो God, खुदा ने आपकी हेल्प की, खुदा उनका शुक्र हो। जो नामा चैप्टर था उसमें हमने थोड़ा सीखा था कि नूह ने जब तूफान रुक गया और वो कश्ती से बाहर निकला, तो खुदा ने नूह को बरकत दी, उसकी फैमिली को बरकत दी। और सारे जो जानदार थे या नूह ने, उसकी फैमिली ने क्या खाना पीना था वो खुदा ने बताया था, है ना। वो हमने थोड़ा सीखा था। और खुदावंद ने अहद बांधा था कि अब ये तूफान जो था, जिस तरह पूरी दुनिया में आया था, वो दोबारा नहीं आएगा। खुदावंद ने इंसानों के साथ और जानवरों के साथ भी ये अहद बांधा था, है ना, जो वो उसका निशान था। और फिर हमने देखा कि जो हाम था, जो छोटा बेटा था नूह का, उसने जब अपने बाप को गले नंगा देखा, तो खुदावन ने, और नूह ने अपने बेटे, जो छोटा बेटा था,
اس کے بیٹے کو لعنت کی، ہے نا. کنعان جو تھا حام کا بیٹا تھا، خدا نے اس کو نوح نے اس کو لعنت کی، اور خدا نوح نے کہا کہ جو بڑا بیٹا ہے سیم اور یافت، اس کی جو حام ہے وہ اس کا نوکر ہوگا، اس کا غلام ہوگا، ہے نا. دونوں کا ہی، جو بڑے بیٹے ہیں ان کا یہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ غلام ہوگا، نوکر ہوگا، ہے نا. اور لیکن ہم نے یہ بھی ساتھ سیکھا تھا کہ خداوند نے نوح کو جیسے کہہ لیں کہ جب اس نے لعنت کی تو پوری جو حام کی اولاد تھی اس کو لعنت نہیں دی. یہ خداوند کا کہہ لیں فضل تھا، رحم تھا کہ پوری حام کی جو اولاد تھی، جو چھوٹا بیٹا تھا، اس کو لعنت نہیں خداوند نے یا خداوند کے پاک روح کے ذریعے لعنت وہ نہ کر سکا، بلکہ ایک جو بیٹا ہے اس کا کنعان، اس کو لعنت کی، ہے نا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے بائبل ہمیں زیادہ واضح نہیں بتاتی، لیکن یہ کچھ جو اسکالر ہیں ان کا خیال ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ 3 بیٹے جو تھے اس سے ہی پوری دنیا یعنی نسل جو تھی، نسل انسانی وہ چلی تھی. تو اگر حام کی پوری اولاد کو، پوری نسل کو لعنت کر دی جاتی تو ایک زمین کا یعنی دنیا کا ایک تیسرا حصہ جو ہے، کیونکہ 3 حصے ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایک حام کا، ایک یافت کا اور ایک سم کا تھا، ہے نا. تو پوری دنیا میں 3 حصہ جو تھا وہ لعنتی ٹھہرتا، ہے نا. تو اس لیے خداوند کے رحم کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے خداوند نے صرف نوح کے منہ سے جیسے کہہ لیں کہ کنعان جو تھا اس کا یعنی ایک بیٹا، اس کو لعنت جو ہے اس نے کی. اور اس لیے حام نہیں کہا گیا، خدا نے کنعان کو ملعون جو تھا یا لعنتی جو تھا وہ ٹھہرایا، ہے نا. تو یہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے تھوڑا سا سیکھا تھا. تو آج اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی یعنی تینوں بیٹوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی تینوں بیٹے جب نئے سرے سے کہہ لیں طوفان کے بعد دنیا شروع ہوئی تو یہ ہی ہم پوری ساری قوموں کے باپ ہیں، یعنی سم، حام اور یافت کی جو نوح کے بیٹے ہیں. اس سے پھر آگے نسلیں جو تھی، ان کی نسلیں جو تھی وہ چلیں، ہے نا. طوفان کے بعد تو ایک قسم کا کہہ لیں کہ یہ باپ ہیں ہم سب کے. کسی بھی قوم میں سے ہم آئے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے ان کی جا کے جیسے کہہ لیں نسلیں ہماری ملتی ہیں کہ ہم سام کی نسل سے ہیں یا حام کی یا یافت کی نسل سے، ہے نا. تو آگے ان کی جیسے کہہ لیں ملک یا جگہیں یا قبیلے جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے بتائے گئے ہیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا جیسے کہہ لیں ہم دیکھیں گے کہ سم جو تھا جو بڑا بیٹا تھا اس کی نسل سے کہہ لیں جو قومیں نکلیں وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہے، عربی ہے، اسوریہ ہے نا، اور ارمومی. یہ جو بڑا بیٹا تھا اس کی نسل سے یہ قومیں جو تھیں یہ چلیں، اور حام کی نسل سے جو کہہ لیں حبشہ ہے، مصری ہے، کنانی ہے، فلسطینی ہے، بابل کے ہیں اور بھی ہیں کچھ، تو یہ اس کی نسل سے چلے، ہے نا. اور یافت جو ہے مدیانی اس کی نسل سے چلے، جو قوم ہے یونان کی جو قوم ہے وہ اس سے چلی تھی. اور جیسے کہہ لیں کہ جو مصر حام کے اس کے علاقے تھے افریقہ، اور یافت کا جو علاقہ تھا وہ یورپ تھا، عراق، ایران، ہے نا. تو اس طرح سے جیسے کہہ لیں ان کی نسل سے آگے قبیلے چلے، نسلیں چلیں، اور جو جو جگہ جیسے کہہ لیں جن جن ملکوں میں یہ بسے وہ آگے انہی کی نسل سے چلے، یعنی حام کی نسل سے نے دیکھا کہ کوش جو تھا اس کا حام کا جو بیٹا تھا، ہے نا، اور اس سے نسل چلی، اور اس سے لکھا ہے کہ حام کی جو نسل تھی
कूश जो था, इससे नमरूद पैदा हुआ, है ना, जो दुनिया का पहला बादशाह था या पहला सुरमा था। और इससे ही आगे जो है, यानी ये तीनों भाइयों की जो नस्ल थी चली। और कनान जो 15 आयत है, पहले हम थोड़ा कि ये जो कौमें थी, हत्ती, अमूरी और हवी, अक्की, सीनी, ये सारी जो कौमें थी, 7 कौमें, इनके बारे में हमने शायद जो पीछे थोड़े थे उनको याद होगा। ये 7 कौमें जो थी, ये कनान की ये कनान जो था उसकी नस्ल से चली थी, जिसको खुदा ने लानत की थी। इस वजह से आप सबको याद हो कि जब हम गिनती की किताब अस्तिशना की और उसमें सब ये पढ़ा था कि खुदा जब भी इन कौमों के साथ जंग होती थी तो सब कुछ खुदा कहता था कि उसको जला देना, बर्बाद कर देना। खास ये जो 7 कौमें थी। और शायद अब आपको उस वक्त इतना नहीं, तो शायद अब आपको याद रहे या समझ लगे कि क्यों खुदावंद इनको बार बार जब इन कौमों के साथ लड़ाई होती थी, जंग होती थी, तो खुदावंद कहता था कि इनकी कोई चीज जो है तो वहां से लूट का माल जो है वो लेके ना आना, उनको वहां पे जला देना, कुछ भी हो, इंसानों को, जानवरों को भी मार देना, और वो जो भी वहां पे चीजें होंगी उनको जला देना। ये खास खुदा ने बनी इसराइल कौम को, इसराइलियों को खुदावंद ये कहता था। तो ये कनान जो था, ये हाम का बेटा, जिसको खुदा ने नूह ने लानत की थी, इस वजह से कह लें इसके आगे जो कौमें निकली थी, यानी पूरी हाम की जो नस्ल थी या उसके जो औलाद थी, नस्ल थी, उसको लानत नहीं की थी। इसलिए कुछ कौमों से जब जंग होती थी तो वहां से वो लूट का माल जो है वो लेके आते थे इसराइली। लेकिन खास जब इन कौमों के साथ कोई लड़ाई होती थी या कुछ जंग होती थी तो खुदा कहता था कि बिल्कुल खत्म कर देना, है ना। तो इसलिए अब ये आगे भी हम याद रखें, और इस कौमों के बारे में हमने सीखा था कि ये अब भी अगर इन जैसे काम हमारी जिंदगी में होंगे, लानती काम जैसे कह लें, तो ये हमें खुदा से दूर ले जाएंगी। और खुदा को जैसे कह लें जो ये कुछ करते थे, क्योंकि ये खुदा के खिलाफ ही काम करते थे। और इसलिए जब हम इनकी इनकी जो नेचर है या ये जो काम करते थे, जब हम करते हैं तो हम भी लानती हो जाते हैं, या हम भी खुदा के साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है। इसीलिए खुदावन ने हमेशा आगे, अगर इसको अगर आप याद रखें तो आगे जब हम सारी बाइबल को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आगे, तो आप याद रखें कि क्योंकि ये लानती थी, इस वजह से हमारी जिंदगी में भी वो लानते आ जाती हैं उनकी चीजें इस्तेमाल करने से। इसीलिए खुदावंद ने कहा था कुछ भी हो उसको सड़ा देना, जला देना, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कनान की नस्ल जो है उसको अगर हम याद रखें तो हमारी जिंदगी में किसी भी वजह से लानते आ जाती हैं तो उनको खत्म करना है। और उनको खत्म अब हमारा खुदा यीशु मसीह उसका लहू जो है वो कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हाम की जो नस्ल थी उससे कूश जो था वो पैदा हुआ, और कूश से नमरूद पैदा हुआ, जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा सीखेंगे कि ये जहां जहां भी नमरूद जो है ये लिखा है कि खुदा के खिलाफ, ये सूरमा होना तो अच्छी बात है कि मतलब एक किस्म का कह लें कि वो बहादुर है, वो जंगजू है। लेकिन नमरूद का मतलब ही क्या है? ये बागी था, बगावत था, ये खुदा के खिलाफ था। नमरूद के नाम का मतलब भी क्या है कि ये इसने बगावत की थी खुदा के खिलाफ। ये खुदा के खिलाफ खड़ा हो गया था।
خدا کے ساتھ ایک قسم کی کہہ لیں جنگ کرنے کے لیے یہ کھڑا ہو گیا تھا. حام جو تھا اس کی نسل سے یہ نمرود جو تھا کہہ لیں کہ اس کا یہ پوتا تھا ہے نا. کوش جو حام کا بیٹا تھا اس سے نمرود پیدا ہوا. تو اس لیے یہ خداوند کے خلاف جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا اور پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا اس وقت جب دنیا کہہ لیں دوبارہ سے نوح کے طوفان کے بعد شروع ہوئی. تو یہ جو درمیان والا بیٹا ہے چھوٹا جیسے کہہ لیں بیٹا اس کی نسل سے یہ والا کہہ لیں اور کہتے ہیں کہ یہ حبشی یا یہ افریقہ کے جو علاقہ تھا وہاں پہ یہ کہہ لیں اس کی آگے نسل جو تھی وہ چلی تھی ہے نا. تو اس لیے یہ حام جو تھا چھوٹا بیٹا جو تھا اس سے نمرود پیدا ہوا تھا اور نمرود جو تھا وہ خدا کے خلاف تھا. اور آگے اس چیپٹر میں نہیں ہے لیکن اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے خدا کے خلاف ایک برج جو تھا وہ بنانا شروع کیا ہے نا کہ خدا کے خلاف جیسے کہہ لیں کہ ایک عمارت جو تھی بنائی ایک کہ یہ خدا تک یعنی آسمان تک پہنچنا چاہتا تھا جس طرح کے ابلیس کی نیچر میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. یسایہ کی کتاب میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ یا خدا کے جیسے کہہ لیں سامنے تخت اپنا لگانا چاہتا تھا یا خدا سے بھی اونچا جو ہے وہ اپنا تخت لگانا چاہتا تھا. اور وہی نیچر جو ہے وہی ابلیس کی کہہ لیں شیطان کی کہہ لیں کہ اس کے اندر تھی نمرود کے اندر کہ یہ برج بنا رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں آسمان تک جاؤں آسمان تک جہاں کے خداوند کا تخت لگا ہوا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے اپنا اس لیے وہ برج تھا اس نے بنانا شروع کیا کہ خدا کے ساتھ تخت جو ہے میں لگا سکوں یا خدا سے بھی اونچا تخت جو ہے وہ لگا سکوں. اس لیے یہ اس نے یہ بنانا شروع کیا. تو اس لیے یہ جو نمرود ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان نہیں تھا اس کے اندر ابلیس کام کر رہا تھا یا اس کے یہ اس کے کنٹرول میں تھا جب دوبارہ سے دنیا شروع ہوئی یعنی طوفان کے بعد. اور اس نے بادشاہی کرنی پوری دنیا پہ شروع کر لی. اسی لیے ہم بار بار آگے چل کے جیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بادشاہ تھے کیونکہ نوح جو تھا خداوند نے اس کو اختیار دیا اس کے بیٹوں کو لیکن بادشاہی اس نے شروع کی. اصل میں بادشاہ کون ہے؟ خداوند نے ہم کو انسانوں کو اختیار دیا. ہم نے 9ویں چیپٹر میں دیکھا کہ خداوند نے کہا کہ جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں جو بھی سب کچھ ہے خداوند نے نوح کے اور اس کے بیٹوں کے ایک کہہ لیں کہ اختیار میں دیا کہ یہ تو نے کھانا ہے یہ سب تیرے انڈر ہوں گے تیرے اختیار میں ہے. تو جو کچھ یعنی ہر جاندار کا تو کیا کہتے ہیں وہ کھا سکتا ہے لیکن اس کا خون نہ کھانا ہے نا خداوند نے کہا. تو ایک قسم کا بادشاہ خدا نے جو تھا وہ نوح کو اور اس کے بیٹوں کو بنایا تھا برکت دی تھی. لیکن یہ جو نمرود تھا بادشاہی جو تھی اس نے خدا کے خلاف کرنا شروع کر دی. یا کہہ لیں کہ ہم اس وقت کیونکہ جو دنیا میں تھا نوح تھا اور اس کے بیٹے تھے ان کے خلاف جیسے کہہ لیں کہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے ہم کہہ سکتے ہیں چاچے تایاں دے یہ خلاف جو تھا کہہ لیں اٹھ کھڑا ہوا تھا. اور یہ اس کے ہی آگے نسلیں جو تھی چلی تھی کہ جو بت پرستی آئی تھی پوری دنیا میں کیونکہ یہ اپنی پوجا جیسے کہہ لیں کروانا آگے ہم پڑھیں گے دوسرے چیپٹر میں یعنی 11 چیپٹر میں ہے نا. تو یہیں سے شروع ہوئی تھی نمرود سے ہی جو چھوٹا والا بیٹا تھا اس سے یہ ساری خدا کے خلاف یہ چلنا شروع ہو گیا تھا. اور جیسے کہہ لیں کہ
जैसे इसने बुर्ज बनाया, ईंट पे ईंट रखता गया, तो ये एक रूहानी तौर पे अगर हम देखें तो जो कुछ हम एक एक सोच जो खुदा के खिलाफ हम हमारे जहन में आती है, वो ईंट पे, जैसे खुदा के साथ चलना हमारा है कि हम क्या है, रूहानी तौर पे पत्थर बन रहे हैं या कीमती पत्थर बन रहे हैं या दीवार खड़ी कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम खुदा के खिलाफ चल रहे हैं, तो जिस तरह इसने बुर्ज बनाया था, जिस तरह इसने खुदा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, इसी तरह फिर हम भी खुदा के खिलाफ इसने वो बुर्ज करने किया, है ना। तो इसने एक जैसे कल खुदा के खिलाफ बादशाही जो थी वो शुरू की थी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं और आप भी एक एक सोच जो है हमारे अंदर आती है, खुदा के खिलाफ हम चलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह ये खुदा के खिलाफ सुरमा था, ये जंगजू था, लेकिन खुदा के खिलाफ था। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं और आप भी इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे कि एक एक सोच या एक एक काम जो है, जैसे जैसे हम करते जाते हैं, एक किस्म की हम दीवारें खड़ी करते जाते हैं खुदा के और हमारे दरमियान, वो दीवारें खड़ी हो, हम खुद उसको बना रहे हैं, खुद उसको खड़ा करते जा रहे हैं, जिस तरह न नमरूद ने किया था। क्योंकि वो क्या करता था, वो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को बादशाह कहता था। और अगर मैं और आप भी खुदा के खिलाफ चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी ऐसा ही आ, जैसे कह लें बुर्ज बना रहे हैं, ऐसे दीवारी खड़े कर रहे हैं। और इस इन्हीं दीवारों को आके जो हमारी दुश्मनी की, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अगर नस्ल पीछे आ, चलें, तो हम भी कहीं ना कहीं इनकी नस्ल से हैं, क्योंकि तूफान के बाद इन्हीं की नस्ल जो थी आगे चली थी, है ना। तो इसलिए हम भी खुदा के खिलाफ थे, लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह आए, तो उसके खुदाम यीशु मसीह के लहू के वसीला से वो दुश्मनी की दीवारें जो थी हमारे और खुदा के दरमियान, वो खुदाम यीशु मसीह ने ढा दी। हालेलुया। इसलिए हमने जो नमरूद की नेचर है, या जो इसकी नस्ल थी, लानती काम जो थे, जो ये करते थे, इसीलिए खुदावंद ने हमेशा अपने इस्राएली कौम को कहा कि ये जो हत्ती, अमोरी, जबसूई, बेउसी, अर्की, ये जितनी भी इसकी 7 नस्लें आगे कनान से चली थी, खुदावंद ने कहा कि उनके से काम हमारी जिंदगी में ना आए, है ना। और वो जहां जहां वो बसती थी, खुदावंद ने यहाँ तक कहा कि उनके घर भी तू गिरा देना और जला देना। एक एक चीज को खुदावंद ने कहा था कि जला देना। इसीलिए आज खुदावंद जब जहां कहीं हम भी, हमारी जिंदगी में कोई लानतें आ जाती हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो खुदा के खिलाफ हम कर रहे हैं, है ना, तो हमें माफी मांगने की इसीलिए ज्यादा, जैसे कह लें, जरूरत है। वैसे तो हर काम की जरूरत है, लेकिन कोई भी ऐसे लानती काम, कोई ऐसे हम चीजें पहन लेते हैं जिससे नमरूद को कह लें, या दुनिया का बादशाह जो है, या उसको जो खुदा के खिलाफ है, जो, तो हमें पाक साफ होने की जरूरत है। हालेलुया। हम ज़बूर 52 पढ़ना, जिसमें कि देखो ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पाक पनाहगाह, जी हाँ, निकालना ज़बूर, कि हमारी जी। पनाहगाह कौन है, हम किस पे बुर्ज बना रहे हैं या ईंट पे खड़ी कर रहे हैं, हमारा खुदा। हाँ जी, पढ़ना उसकी 91 पे। नहीं, ज़बूर 52 उसकी 7 आयत। जी ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो ये जो भी ऐसा इंसान है कि जो अपने ऊपर भरोसा करता है और अपनी मालो दौलत पे
और शरारत में पक्का है, वो इसकी नस्ल से है, कह लें नमरूद की नस्ल से है, या कह लें शैतान की, या इब्लीस की, या सांप की नस्ल से है। तो ऐसी कोई भी हमारे अंदर कह लें कि ऐसा रवैया है ऐसे कि हम खुदा को अपनी पनाहगाह नहीं बनाते, हम इंसान जो है, आदमी जो है, अपने ही मालो दौलत पे भरोसा करता है, या अपने जोरे बाजू पे भरोसा करता है। इसलिए जैसे वो सुरमा था, वो अपने बाजुओं पे भरोसा करता था, ये नमरूद। इसलिए खुदा जो है कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग जो हैं वो अपने ऊपर अपने नाम को जलाल दें, अपने ऊपर भरोसा करें, मैं कर सकना, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा खुदा जो है वो कर सकता है। लेकिन इस नमरूद ने क्या किया था, वो सुरमा था। तो हमेशा उसके अंदर जोर था, वो उस पे भरोसा करता था, है ना। तो इसीलिए जो हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हम सब में कि मैंने ये अपनी समझ से, जैसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया, उसने कहा कि ये जो शहर है, ये खूबसूरत, या ये महल जो है, ये उसने खड़ा किया। और उसी वक्त उसकी क्या हुआ था, खुदाम की आवाज आई थी, और उसने उसकी आवाज बंद हो गई थी, या वो जानवरों की तरह घास खाना शुरू हो गया था। तो इसलिए जहाँ कहीं भी ये मैं जो है हमारे अंदर आ जाती है, हम अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया, घर का निजाम मैं चला रहा हूँ, मेहनत मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जहां पे भी ये आ जाता है, तो इसकी नेचर जो है हमारी जाके नमरूद के साथ मिल जाती है। इस वजह से खुदावंद अ, जो मैं कहूंगी कि गुरूर जो है जब आ जाता है, तो खुदावंद उसका उस बंदे का मुकाबला करता है, क्योंकि जिस तरह इसके बारे में लिखा है, ये खुदा के खिलाफ सूरमा था, यानी खुदा के साथ इसकी जंग थी, ये लड़ता था खुदा के साथ। तो बिल्कुल उसी तरह जब हमारे अंदर गुरूर आ जाता है, तो हम खुदा के साथ एक किस्म का लड़ाई करते हैं, या जंग करते हैं, या खड़े हो जाते हैं। कैसी समझने हैं कि जो कुछ भी जैसे आदमियों का ख्याल होता है कि जो कुछ भी घर में मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने घर के निजाम को संभाल के रखा हुआ है, मेरे अंदर समझ है, मेरे अंदर अक्ल है ना। नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। अगर ये हम सोच रहे हैं, या बीवी ऐसा सोच रही है कि मेरे बगैर तो घर चल ही नहीं सकता, है ना, सारे क्या कहते हैं, बच्चों की परवरिश, घर का काम, या बाहर, या जो कुछ भी है वो मैं कर रही हूँ, तो वहां पे हमारी नेचर में क्या कहते हैं, ये सुरमा आ जाता है, ये नमरूद आ जाता है, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ था, और वो अपने जोरे बाजू पे उस भरोसा करता था। तो इसलिए जहां कहीं भी ये है हमारे घरों में, मेरे अंदर है, आपके अंदर, इसलिए खुदा को नफरत है, या खुदा जो है फिर उसका मुकाबला करता है, क्योंकि उसने खुद ही, मैं कहूंगी कि जंग जो थी छेड़ ली थी नमरूद ने, कि वो खुदावन के खिलाफ खड़ा हो गया था, है ना। तो इसलिए जहां कहीं भी हमारे अंदर ये आ जाता है, तो हम खुदावन से जंग के लिए खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उसकी जो नस्ल थी आगे, और जो कनानी थे, है ना, उसकी कुश की जो औलाद थी, आ, नहीं, कनान की जो औलाद थी, खुदावन वो लानती थे। तो इसलिए जब कहीं उनकी नेचर या उनकी कोई चीज या इस्तेमाल करते हैं हम, या उनका उसके जो रवैये हैं, उसका मिजाज हमारे अंदर आ जाता है, तो खुदावंद को उससे नफरत है। हालेलुया। इसलिए मैं और आप, हमारे अंदर आज कहीं पे भी हम अपने कि मैं बड़ी अक्लमंदी से इस घर को चला रही हूँ, या बड़ी अक्लमंदी है मेरे अंदर, या मैं जो है मेरे अंदर तो समझ है, मेरे हस्बैंड के अंदर नहीं है, या मेरी बीवी के अंदर नहीं है। तो ये जहाँ कहीं भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर नमरूद की जो स्पिरिट है, बदरूद जो है, वो काम कर रही है। इसलिए फिर खुदावंद
जो गुरूर करने वाला है उसका मुकाबला करता है। ये हमें बाइबल में बहुत हवाले जो हैं कह लें मिलते हैं। जो मिस्र था, जैसे कह लें वो इसकी हाम की इलाका था या नस्ल से आगे चला था। इसीलिए जब लेकिन खुदावन जो है कनानियों को कह लो या उसकी औलाद को या उसकी नस्ल को या हाम की नस्ल को जो है खुदावंद ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। खुदावंद इनमें से जो भी हाम की चाहे औलाद है, चाहे इसकी याफत की है, सम की है ना, और कनान की है, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद इन सब को चाहता है कि ये तौबा करे, माफी मांगे और खुदावंद को कबूल करें, है ना। इससे खुदावंद ने सबके लिए जान दी है। खुदावंद इनको भी बचाना चाहता है और खुदावंद ने हर नस्ल से, हर रंग से कह लें कि अपने लिए लोगों को चुना है। और खुदावंद उनकी जिंदगी में भी, जैसे कह लें, आपने शायद सुना हो अफ्रीका में जो है बहुत ज्यादा, जो शायद आपको पता हो, जो रेनल्ड बॉन्की है, उसने वहां पे बहुत काम किया और बहुत ही ज्यादा वहां पे जो लोग थे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और रात को ही अम, अ, जो जिनको पता है, रोमा की जो टीचर थी वो वहां से आई हुई थी, तो उसका मैसेज हम सुन रहे थे। तो वो कहती है कि जो अफ्रीका का कह लें हैं या उधर कीनिया जो है मुल्क है ना, कहती है कि वहां पे जो जब वो खुदा को प्यार करते हैं वो इवेंजलिज्म नहीं करते, क्योंकि अभी तो उनकी हो रही है। लेकिन कहती कि जो प्रस्तिश, जो मोहब्बत उनके अंदर है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। कहती वो दुनिया में ऐसे लगता है जैसे सबसे ज्यादा खुदावंद को प्यार करते हैं। कहती कि वो यानी जैसे कह लें ये अफ्रीका में जो, या हाम की नस्ल से कह लें, हबशी जो है, या कहती वो सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले चर्च जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। उनको बीच में जब ब्रेक होती है वो चर्च जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। शाम को जब ड्यूटी से वापस आते हैं वो घरों को नहीं जाते, वो कहती सीधे चर्च जाते हैं, वहां पर परस्तिश करते हैं। और कहती है उनकी परस्तिश कभी भी अ, जिसना कहते हैं आराम से खड़े होके नहीं होती। अभी शुरू भी नहीं होती परस्तिश, म्यूजिक शुरू भी नहीं होता और वो डांस करना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद से वो इस कदर मोहब्बत करते हैं। खुदावंद जो है हर कौम से खुदावंद ने अपने लिए लोगों को चुना है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद सबसे मोहब्बत करता है। और वो कहती है कि लेकिन अब जो है वहां पे उनके अंदर भी क्योंकि उनको इतनी ये समझ नहीं थी, वो जैसे उनको पता चला उन्होंने कबूल किया, उनके अंदर मोहब्बत जो थी वो आ गई। और उनको यही लगता था कि प्रस्तिश करना और यही एक किस्म का खुदावंद को अपना आप देना है, या अपनी जैसे कह लें जी जान से आ, मोहब्बत करना ही सब कुछ है। लेकिन कहती है अब उनको समझ लग रही है, अब वो भी इवेंजलिज्म करते हैं, वो भी दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और उनको भी खुदावंद इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद जो है, जिस तरह जब मिस्र से निकले थे, अंजना अपनी कालना सबूर 105 और 106 सबूर जो है वो हम पढ़ेंगे कि जब मिस्र में से इसराइली निकले तो वो किसका इलाका था? मिस्र जो है वो किसका इलाका है? वहां पे साफ लिखा है कि ये हाम की सरजमीन थी। और हम जानते हैं, जी अंजना निकालना, जबूर 105 उसकी 23 आयत से 27 आयत और जबूर 106 उसकी 22 आयत में लिखा है साफ साफ कि वो जो जमीन थी, वो जो इलाका था मिस्र जो था, वो हाम का इलाका था और खुदावंद ने वहां पे मौजे दिखाए। और जब वहां से निकले तो वहां से भी जो मिस्री थे, या जिसके बारे में लिखा है कि मिली जुली भीड़ जो थी वो भी इसराइलियों के साथ निकली थी, तो वो किसके नस्ल में से थे? हाम की नस्ल में से। जी अंजना, आप पढ़ोगे 106 105 जबूर और 106 जबूर, उसमें लिखा हुआ है
इसराइल भी मिस्र में आया और यकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालफों से ज्यादा कवी किया। और ये मैंने पढ़ा है एक ज़बूर 105 उसकी 23 आयत से पढ़ रही हूँ, है ना। और खुदावन ने वहां पे मौजे दिखाए, उसने उनके दिल को बरगश्ता किया ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगजीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मौजजात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। किसकी जमीन पे? हाम की जमीन पे, या हाम की नस्ल के दरमियान खुदावन ने मौजे जो थे वो दिखाए। जब मिस्रियों को इसराइल को मिस्र में से निकाल के लेके आया, तो वो इलाका किसका था या वो मुल्क किसका था? जो मिस्र है वो हाम की नस्ल से था। तो खुदावन ने उसकी सरजमीन पे मौजे दिखाए। हालेलुया। और बहुत से जो थे लोग वहां पे वो ईमान लेके आए थे खुदावन के ऊपर। और 106 ज़बूर उसकी 22 आयत में भी लिखा है, और हाम की सरजमीन में अजायब और बहले कुलजम पर दश्त अंगेज काम किए। तो खुदावंद जो हाम की नस्ल थी, खुदावंद ने उसको भी बरकत दी, या उसमें से भी लोगों को खुदावंद ने चुना। और फिर जब योना को भेजा था नैनवा शहर, तो नैनवा जो था वो किसके उसके था? वो हाम की उसका था, कह लें शहर या इलाका जो था हाम की नस्ल से था। इसलिए खुदावन ने वहां पे भी क्या था, जब वो हमने पिछले दिनों पढ़ा, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, कि खुदावन ने वहां पे भी वो पूरा जो नैनवा शहर था उन्होंने क्या किया था? रोजा रखा था और खुदावन के आगे गिर गए थे। हालेलुया। और उन्होंने खुदावन को कबूल किया था। यूना पहला बाप और उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो नैनवा जो था वो हाम का इलाका था। अगर हम पढ़ना चाहें, जी अंजना है हमारे साथ या और कोई अगर पढ़ना यूना पहला बाप, और ये हाम का इलाका था। जी यूना पहला बाप और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि ये नैनवा जो शहर था ये हाम की नस्ल से कह लें था, और उसका इलाका था नैनवा जो था, और तरसिस भी जो था, जिस तरफ जो यूना था वो भागा था। हालेलुया। इससे खुदावन जो है अपने लोगों को, और चाहे वो किसी भी नस्ल से हैं, रंग से हैं, खुदावन जो है अपने लोगों को चुन रहा है, अपने लोगों को बचा रहा है। खुदावन जो है किसी की हलाकत नहीं चाहता। जो भी उस पे ईमान लाएगा, जो भी खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेगा, खुदावंद उसको बचाएगा। जिस तरह के हमने देखा कि खुदावंद हाम की जो नस्ल थी, वो नौकर थे। लिखा है कि उसको एक किस्म की आप कह लें कि खुदावन ने नूह ने बरकत नहीं दी थी। वो उसने कहा कि ये गुलाम होंगे, ये नौकर होंगे। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम फिर क्या है, यानी शैतान के या उसके नौकर नहीं रहते। हम खुदावन की बादशाही में या उसके शाही कायनों के फिरके में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए खुदावन ने जिसको लानत एक किस्म की कह लें मिली थी, जब वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर वो नौकर नहीं रहते। तो इसलिए हम भी कहीं पीछे किसी भी नस्ल से थे, रंग से थे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह में अब आ गए हैं। जिस तरह हाम की नस्ल को एक किस्म की कहने के कहा था कि ये गुलाम होगा, नौकर होगा। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम किसी भी याफत की नस्ल से हैं, और यहाम की नस्ल है, लेकिन अब हम सैम की नस्ल से हो गए हैं। जिस तरह के हमने उस दिन पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि खुदा यीशु मसीह किसकी नस्ल से है? सम जो बड़ा बेटा था उसकी नस्ल से है।
हालेलुया। इसलिए हम नमरूद जो कि खुदावंद के खिलाफ सुरमा था, खुदावंद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, वो बादशाह बन गया पूरी दुनिया का, खुद से ही बादशाह बन गया, है ना। तो अगर हम उसके काम करते हैं, अगर हमारे अंदर उसका बिहेवियर है, तो फिर हम उसकी नस्ल से हो जाते हैं। लेकिन हम मसीह के लोग हैं, चुने हुए हैं, खुदा यीशु मसीह के लहू में धुले हुए हैं, तो अब हम सम की नस्ल से हैं, जो कि बड़ा बेटा था। तो कहीं पे भी हमारे अंदर ऐसा कोई रवैया है, कोई ऐसा कि हम अपने आप को अपने जोरे बाजू पे अ, भरोसा करते हैं, जिस तरह के हमने ज़बूर 52 में देखा कि देखो ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पनाहगाह नहीं बनाया, बल्कि क्या किया, अपने माल पे, अपनी दौलत पे, उसकी फरावानी पे भरोसा किया और शरारत में पक्का रहा। इसलिए हमने शरारत में पक्के नहीं बनना, अपने जोरे बाजू पे भरोसा नहीं करना और अपनी दौलत पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, और खुदावंद हम साम की नस्ल से हों, साम की नस्ल से और यस्सु की नस्ल से हों। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसा कोई गुरूर, कोई तकब्बर, कोई फकर ना हो कि ओ मैं ही कारनों संभालने पे, या मैंने ही ये किया, मेरे जोर से, मेरी ताकत से, मेरी अकल से ये हुआ, या मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी हम ये करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को अपनी पनाहगाह नहीं बनाते, बल्कि किसको बनाते हैं, अपने ताकत पे भरोसा करते हैं। तो हम फिर नमरूद की नस्ल से हैं। हालेलुया। हम नमरूद की नहीं, हम खुदावंद की नस्ल से हैं, हम शाही कहनों का फिरका है। हालेलुया। इसलिए अब जो है, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की नस्ल से हैं, साम की नस्ल से हैं। तो इसलिए हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का मजाज होना चाहिए, वैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारे अंदर। और हमें जो हमें आसमानी चीजें जो है, लिखा है कि हाँ, जो हमने देखी नहीं है उस पे भरोसा करें कि वो मुझे मिलेगा। खुदावंद आसमान से मेरी कुमक भेजेगा, खुदावंद मेरी हर जरूरत को आसमान से पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने किसी उस पे भरोसा ना करें, खुदावंद को पनाहगाह बनाएं। खुदावंद हमारी छुपने की जगह है, खुदावंद हमारी चट्टान है। हम में कोई जोर नहीं है, हम में कोई अकल नहीं है, कोई समझ नहीं है, लेकिन हमारे खुदावंद में सारी समझ है, सारी अकल है, सारा जोर, सारी ताकत हमारे खुदावंद में है। और हम खुदावंद में हमेशा छुपे रहें, क्योंकि लिखा है, या दाऊद भी क्या कहता है कि वो मेरी छुपने की जगह है, वो मेरी पनाहगाह है। तो हम अपने खुदावंद को अपनी पनाहगाह बनाएं। तो ऐसी दीवारें ना खड़ी करें, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक गुनाह या अ, ऐसी बुरी सोचें या ऐसे बड़ी सोचें या तकब्बर की, वो एक एक ईंट हम बना रहे हैं, और खुदा के दरमियान और हमारे दरमियान दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हमने इन सारी दीवारों को यीशु ने गिरा दिया है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद हम सबको फजल दे, रहम करे, तरस खाए कि खुदा यीशु मसीह का मजाज हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर नमरूद का मजाज ना हो। तो गॉड ब्लेस यू। कोई जो हमें दुआ में लीड करना चाहता है। जी, अगर खुदा का रूह किसी को भार रहा है तो वो हमें दुआ में लीड कर सकता है। नहीं भार रहा? ओके। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा जिंदा खुदा हमारा खुदा है, जिसने हमें, हम जो कुछ भी नहीं थे, हम, हमारी हैसियत नहीं थी, हमारी कोई
खुदावंद हम लानती थे खुदावंद यीशु, लेकिन खुदावंद तूने हमें चुन लिया, तूने हमें घूरे में से गटर में से निकाल लिया कि खुदावंद हम तेरे घराने में शामिल हो जाएं खुदावंद यीशु, हम तेरी नस्ल से हो जाएं खुदावंद यीशु। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद खुदा हमारा जो हमारी जो पहचान है वो तेरे साथ है खुदावंद खुदा। इसलिए जिस तरह हमने सीखा कि अगर हम तेरी नस्ल से हो गए हैं, अगर हम तेरे खानदान में शामिल हो गए हैं, तो उसके लायक चाल चलें। जिस तरह के खुदावंद वो शाहिनी काहिनों के फिरके में खुदावंद बादशाह के खुदावंद खानदान में हम शामिल हो गए हैं, तो वैसा ही हमारे अंदर तौर तरीके हमारे अंदर आने चाहिए कि क्या बादशाह को पसंद है, कैसा महल में रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना है, कैसे काम करने हैं। खुदा खुदा वो सब हमारे अंदर आ जाए। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक रूह के लिए जो हमारी रहनुमाई कर रही है। जिस तरह आस्तर मलका को खुदा ख्वाजे सिखा रहे थे कि इस महल में किस तरीके से रहना है। खुदा आज तेरे भी हम इस महल में तेरी बादशाही में दाखिल हो गए हैं, तो खुदा तू पाक रूह के जरिए हमें सिखा रहा है हमें क्या पहनना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे खुदावंद तेरी हुजूरी में जाना चाहिए, क्या हम मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते। खुदा वो सब तू हमें सिखा रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा पाक रूह के लिए। हम पूरा अपना होल्ड, पूरा कंट्रोल खुदा पाक रूह के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि हमें कोई समझ नहीं है, कोई अक्ल नहीं है कि कैसे चलना है। खुदा पाक रूह का पता है कि बादशाह को क्या पसंद है, खुदा कैसी बातें, कौन सी खुशबुएं उसको पसंद है। खुदा हम बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा एक एक को खुदा जितने भी हम इस ग्रुप में हैं खुदा और खास तौर पे इस वक्त जितने भी हम इस मीटिंग में मौजूद हैं, खुदा पाक रूह हमारे अंदर कहीं ऐसी जो नमरूद की नेचर है, खसलत है हमारे अंदर खुदा हम अपने ऊपर ही भरोसा करते हैं, हम समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े समझदार हैं। खुदावंद हमारे अंदर जोर है, ताकत है खुदा आज खुदा तेरे यस्सु नाम से खुदा हमारे अंदर से ये खसलत जो है वो खत्म हो जाए तेरे यस्सु नाम से। तेरे यस्सु खून से मैं एक एक को धो के पाक और साफ कर देती हूँ। खुदा हमारे अंदर तेरा मजाज आ जाए, वो नरमी आ जाए, वो हलीमी आ जाए खुदा वो मेहरबानी आ जाए खुदा हमारे अंदर वो पाकीज़गी आ जाए हमारे अंदर खुदा यीशु जिस तरह खुदा यीशु तेरा मजाज था वो हमारे अंदर आ जाए खुदा कहीं पे भी कोई दाग है, कोई धब्बा है, कोई झुर्री है, किसी भी वजह से खुदा हमने तुझे दुख दिया है, नाराज किया है, खुदा यीशु के नाम से आज हम धुल जाएं। और खुदा आज जब हम तेरी हजूरी से उठे तो खुदा हम पहले जैसे ना रहें, हम तब्दील हो जाए, हम बदल जाएं खुदा जिस तरह तूने पालूस रसूल को बदल दिया खुदा जिस तरह खुदा यीशु जब तेरे साथ उसकी मुलाकात हुई खुदा तेरे साथ उसका आमना सामना हुआ खुदा तो वो तब्दील हो गया खुदा वो साउल से पालूस बन गया खुदा उसी तौर से जब हम तेरे सामने आए खुदा तेरे तख्त के सामने खुदा तो हम पहले जैसे ना रहे खुदा हम पालूस की तरह हमारे मजाज बदल जाए। हाँ खुदा हमारी अक्ल बदल जाए खुदा वो पहली जो अक्ल है जो दुनिया की अक्ल है खुदा यस्सु के नाम से वो निकल जाए और खुदा तेरी अक्ल तेरी समझ हमारे अंदर आ जाए यस्सु के नाम से। एक एक को खुदा यस्सु आज खुदा कहीं पे भी खुदा नमरूद का कोई ऐसा मिजाज हमारे अंदर है खुदा वो जड़ से खत्म हो जाए खुदा आज खुदा हम तेरी नस्ल से तेरे खुदा बेटे बेटियां बन गए हैं तो खुदा हम वो काम भी करें, वो खुदा बातें करें खुदा वो ऐसे लिबास पहने खुदा ऐसी हमारे बदन से खुशबुएं आए तुझे खुदा यीशु ऐसी कुर्बानियां अपने बदन को पेश कर दे खुदा
وہ زور نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے خدا، سارا زور اختیار تو تیرے پاس ہے خدا پاک روح. ہم اپنے بدنوں کو تیرے حوالے کر دیتے ہیں خدا. کہیں پہ بھی کوئی ہم میں بیمار ہے تو خدا آج خدا تو اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا، شفا بخش ہاتھ کو بڑھا خدا. کہیں رشتوں میں کوئی دراڑ آ گئی ہے یسو کے نام سے خدا آج روحانی جسمانی شفا کو یسو کے نام سے مانگتی ہوں ایک ایک کے لیے خدا. اور خداوند تیرے پاک خون میں ایک ایک کو کور کر دیتی ہوں، خاص طور پہ خدا سیمول کو، خدا مایا کو، خدا امندیپ کو، سبا کو، خدا انجنا کو، خدا یسو تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. سسٹر مہندر کو بھی خدا اور بھی جتنے بیمار ہیں خدا ہمارے گروپ میں ہمارے درمیان خدا یسو کے نام سے خدا جو کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہے خدا یسو کے نام سے ایک ایک کو نیا زور دے، نیا مسا انڈیل دے خدا. جہاں کہیں بھی کسی بھی چاہے چھوٹی جنگ ہے چاہے بڑی جنگ ہے خدا یسو کے نام سے وہ جنگیں اپنی جیتیں اور خدا یسو ابلیس کو اپنے پاؤں تلے کچلتے رہیں خدا یسو کے نام سے خدا تیرے زور سے تیری طاقت سے خدا اور خدا بیمار شفا پائیں، جو ڈپریشن میں ہیں پریشانی میں ہیں خدا ان کے اندر تسلی اطمینان آ جائے خدا یسو کے نام سے. ہم سب مل کر ایک روم میں بند کر خدا اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں یسو کے نام سے. اب ہمارے خدا کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا، ہمیں اپنے ساتھ لے نہیں جاتا. یسوع کے نام سے تیرا ابر ہمارے اوپر چھایا ہے. آمین. God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.